ویلکم بیک ناظرین. آپ کو بتائیں کہ بریگیڈیئر ریٹائر غضنفر علی صاحب نے پروگرام کے پہلے حصے میں ہمیں جوائن کیا تھا اور عبداللہ ملک صاحب نے. دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گی. اور ذوالفقار راحت صاحب سینئر انالسٹ ہمیں پروگرام کے اس حصے میں جوائن کر چکے ہیں. ویلکم کروں گی راحت صاحب آپ کو. راحت صاحب مجھے یہ بتا دیجئے, یہ جو ابھی پریڈکشنز کی جا رہی ہیں فیصل واڈا صاحب کی طرف سے, فیض حمید اب عمران خان کے خلاف گواہی دینے جا رہے ہیں, یہ پریڈکشنز ان تک اطلاعات پہنچتے ایگزیکٹلی کیسے ہیں, اور پھر سرپرائزنگلی ان کی جتنی پریڈکشنز ہیں وہ سچ بھی ثابت ہو جاتی ہیں؟ میری اطلاع بھی یہی ہے کہ فیض حمید صاحب اس طرح کا کوئی بیان دے سکتے ہیں, لیکن دوسری اطلاع میری یہ بھی ہے کہ ان کی جو سزا ہے آنے والے دنوں میں وہ ختم بھی ہو سکتی ہے. اور اس کے لیے ان کے وکیل علی اشفاق صاحب سے میری آج بات ہوئی تھی, وہ بڑے ہوپفل تھے. وہ کہتے ہیں کہ بس یہ خبریں لوگ دیکھ لیں, ذرا مزے لے لیں, کوئی یوٹیوبر پیسے پوسے بنا لیں, اور جلد میں آپ کو سرپرائز دوں گا. تو میں نے کہا وہ سرپرائز کیا ہے؟ اس نے کہا یہ سزا سسٹین نہیں کرے گی, یہ ختم ہو جائے گی. اب فیصل واڈا صاحب ظاہر ہے بہت زیادہ باخبر ہے, ہم اتنے باخبر تو نہیں ہیں, لیکن یہ معاملہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ کوئی اتنا سینئر افیسر اس طرح اس کو سزا دی گئی ہے. اور یہ سزا ڈی جی آئی ایس آئی کو اس ٹائپ کی سزا دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک راستہ کھول دیا ہے. اور یہ ایک ایسی سیٹیں ہوتی ہیں, ایسے منصب ہوتے ہیں جہاں پہ امیونٹی ہوتی ہے, اس لیے کہ ورنہ تو کوئی بندہ اپیٹ کر ہی نہیں سکتا. پوری دنیا کے اندر انٹیلیجنس کو امیونٹی حاصل ہوتی ہے کہ وہ جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں تو ریاست کو یہ امیونٹی دینی پڑتی ہے. صورت دیگر آپ کی فنکشننگ, آپ گورننس, آپ کا سسٹم, آپ کی ایجنسیز, آپ کے انسٹیٹیوشن چل نہیں سکتے. تو یہ ایک بالکل ہی ایک ایسا فیصلہ ہے جو بہت سارے لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہا, لیکن بہت سارے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بڑا ٹھیک ہوا ہے. اور ابھی نون لیگ تو ڈو مور کا مطالبہ کر رہی ہے. خواجہ آصف صاحب نے آج کہا ہے کہ جی آگے لائن لگ جائے گی, کئی ججز اس کی پیٹ میں آئیں گے. ناصر صاحب کہتے ہیں کہ جی قمر باجوہ صاحب بھی بس کمر کس لیں. اور طارق فضل چودھری کی بھی یہی سٹیٹمنٹ ہے, فیض حمید سے فیض یاب ہونے والوں کا ٹرائل ہوگا, سب کے فیصلے آنے والے ہیں یا سب کے فیصلے آئیں گے. اچھا مجھے بتائیے گا راحت صاحب, آپ نے کہا کہ سزا ختم ہوگی, ان کے لائر سے آپ کی بات ہوئی ہے, تو یہ کیا کس گراؤنڈ پہ ان کی سزا ختم ہوگی؟ دیکھیں اس کی ریمیڈی موجود ہے, وہ اپیل میں جا سکتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ جن ایویڈنس کی بیس کے اوپر سزا ہوئی ہے وہ ناکافی ہے, اور میں اس کی بیس کے اوپر ہی چیلنج کروں گا. اور ٹیکنیکل بیسس کے اوپر ہی چیزیں ہوئی ہیں اور اس کو چیلنج بھی کیا جاتا ہے, تو یہ ریمیڈی ظاہر ہے موجود ہے اپیل کی. تو اس کا خیال ہے کہ اس کی بیس کے اوپر یہ سزا جو ہے قائم نہیں رہ سکے گی, ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا. بٹ صاحب سے جانتے ہیں, بٹ صاحب جیسے ابھی راحت صاحب نے خبر دی ہے کہ ان کے لائر سے بات ہوئی, وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تھوڑا سا اس پہ ڈسکشن وغیرہ سارے کر لیں, اس کے بعد سزا ختم ہو جائے گی. اب یہ سزا ختم ہوتے ہوئی آپ کے خیال میں کن گراؤنڈز پہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ایویڈنس ہے وہ ناکافی ہوں گے, یا آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو سے گواہی کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ گواہی دے دیں گے تو اس کے بعد وہ اپیل میں جائیں گے, یا کوئی ایک کیا پروسیس کیا دیکھ رہے ہیں اس کے بعد آپ؟ دیکھیں جو راحت صاحب نے بات کی ہے میں انہیں بالکل انڈورس کروں گا. اس سے پہلے بھی اگر ہم دیکھتے ہیں 1958 میں بریگیڈیئر تھے نیاز صاحب, ان کو بھی ایک کورٹ مارشل ہوا تھا. پھر ہم نے دیکھا اسد درانی کے اوپر بھی ایک ایسا ہی, اسد درانی کے بعد پھر ہم نے جوید اقبال صاحب کو دیکھ لیں, جوید اقبال صاحب کے بعد ضیاء الدین بٹ صاحب, یہ سارے بعد میں رہا ہی ہوتے رہے ہیں. بلکہ علی خان صاحب کا بھی جو 2019 میں بھی ہم نے دیکھا, یہ یقین رکھیں یہ ایک جو ہم جس ادارے کے اوپر بات کرتے ہیں وہ ایک ڈسپلن ہے. ظاہر ہے کوئی ایسے حقائق ان کے سامنے آتے ہوں گے سزا کے بعد, جیسے اپیل کا حق ہوتا ہے تو وہ ریموو بھی ہوتی رہی ہے اور ہوتی آ رہی ہے. اور یہ بھی میں بالکل متفق ہوں کہ ایسا ہی ہے کہ کچھ لوگوں کی خواہشات تو ہے, لیکن وہ ہوتا ہے نا کہ خواہشات کے لیے ہم, کیونکہ یہاں پر ہم نے بیجا ہی نفرت کو ہے فائدہ, نفرت کو ہوا دیا, اور وہ آج اتنی بڑی فصل بن چکی ہے کہ اس کو کاٹنا ان کے لیے بہت مشکل آ رہی ہے. ہر طرف نفرت ہی نفرت ہے. ہم نے اس پاکستان کے اندر بیجا ہی نفرت کو ہے, ہم نے اپنی انا کو بیجا ہے, ہم نے اپنے اسٹیٹس کو بیجا ہے. ہم نے یہاں پر کبھی بطور ریاست اس کی ترقی کے لیے, عوام کی خوشحالی کے لیے, آئین کی بالادستی کے لیے کبھی بھی سیریس ہو کے یہاں پر اپنے فرائض سر انجام نہیں دیے, اپنے اوتھ کو
उसके मुताबिक कभी भी जो हम ओथ लेकर आते हैं किसी भी डेजिग्नेशन में, हमने कभी भी उसे क्वालिफाई नहीं किया। यही सबसे बड़ा अलमिया है इस पाकिस्तान का भी, कि अल्लाह करे इसका ये जो सिलसिला है ये ख़त्म हो, हमारी जो नफ़रत भरी जो ख्वाहिशात हैं उनका खात्मा हो, हम रियासत की तरक्की की तरफ जाएं। दुनिया कहाँ पर चली गई और हम कहाँ तक बैठे हुए हैं, हम आज भी एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं। ये एक दुख और तकलीफ वाली बात है। देखें, सबसे बड़ी बात जो राहत साहब ने भी कहा, ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा, मैं भी ये समझता हूँ कि हमारे पास इस वक्त कोई फैसले की कॉपी नहीं है जहाँ पर हम ये एनालिसिस कर सकें कि किस ग्राउंड के ऊपर उनको सजा मिली, और फिर लॉ एक्सपर्ट से पूछा जाए कि कौन सी ग्राउंड होगी जिसके ऊपर उनको रिलीफ मिलेगा। ये उनका एक सीक्रेट मामला है उस अदारे का, लेकिन ये ज़रूर है कि इंशाल्लाह ताला उनको, मैं ये समझूँ आने वाले वक्तों में हो सकता है कि मुखालफीन की जो ख्वाहिशात हैं वो तकमील तक ना पहुँच सकें। बिल्कुल ठीक हो गया। राहत साहब, ये जो बड़े मियाँ साहब ने आज बात की है, एनएफसी अवार्ड भीख नहीं हक है, आज़ाद कश्मीर और जीबी को एनएफसी अवार्ड के तहत फंड्स मिलने चाहिए, ठीक है, जो एनएफसी अवार्ड के तहत सूबे का हक बनता है वो दे, लेकिन यहाँ तो गूंज है कि 28वें तरमीम आ रही है, एनएफसी को रिविजिट किया जाएगा। यहाँ पे बिलावल भुट्टो उस पर बड़ी क्लियर स्टांस ले चुके हैं कि जो एनएफसी को छेड़ा भी नहीं जाएगा। बड़े मियाँ साहब, ये कौन सी लाइन आपके ख्याल में ले गए हैं? फायजा, एनएफसी बुनियादी तौर पे ये जो मसला है 18वीं तरमीम का, ये जाहिर है पीपल्स पार्टी ने उस वक्त 2/3 मेजॉरिटी से ये करवा दी थी, लेकिन अब टॉप लेवल पे रियलाइजेशन ये हो रही है कि 57.5% सीधा सूबों को चला जाता है, 2.5% चला जाता है वार ऑन टेरर पे केपी को, कोई 1.5-2% दरियाओं की मद में सिंध को चला जाता है, 20% वफाक पे चला जाता है, तो 10-12% वफाक के पास रह जाता है। तो दुनिया भर का कर्जा किसने देना है? वफाक ने, स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने देना है, सूबे ने नहीं देना। बड़ा भाई जो है वो सर से पांव तक कर्जों दलदल में फंसा हुआ है, छोटे भाई यही कर रहे हैं, छोटे भाइयों के पास सरप्लस पैसा पड़ा हुआ है। अब ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान को रियलाइज हुआ है कि ये सारा गलत हो गया, इसको रिवर्स करना पड़ेगा, और उस पे काम हो रहा है। और कोई इस पे कुछ भी करे, कुछ भी कहे, कोई हाँ करे ना करे, क्यों करे क्या करे, ये होना है, वापस होना है। और ये किसी लेवल पे डिसाइड हो चुका है, सूबों का मामला और ये एनएफसी का मामला। तो ये मेरी इत्ला ये है कि ये डिसाइड होगा। तो राहत साहब, फिर ये बड़े मियाँ साहब ये क्यों कह रहे हैं कि एनएफसी अवार्ड भीख नहीं है, ये तो हक है? जब ये चीजें डिसाइड हो चुकी हैं, हम लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी है, तो फिर बड़े मियाँ साहब इस तरह की बात आके क्यों कर रहे हैं? बड़े मियाँ साहब इसलिए ही कर रहे हैं ना कि वो ये कह रहे हैं कि इसको दोबारा से इसको एड्रेस किया जाए। तो इसमें देखें ना, बिलावल साहब कुछ कह रहे हैं, बड़े मियाँ साहब कुछ कह रहे हैं, तो इख्तिलाफी चीजें तो आ गई ना। पहले 28वीं तरमीम पे इत्तेफाक था, अब अगर इत्तेफाक ये खत्म होगा, इख्तिलाफ होगा, तो ये चीजें आगे चलेंगी ना। दुरुस्त। जैसे सूबों के मामले में भी आमर साहब उस मूव को चल रहे हैं, मरियम साहबा उसको अपोज कर रही हैं, बिलावल अपोज कर रहे हैं, सिंध के लोग अपोज कर रहे हैं। सिंध में तो हालात ये हैं कि एक लड़के ने सूबों के इशू के ऊपर एक वीडियो बनाई है, तो उसको मार मार के सिंधियों ने उसका वर्कस निकाल दिया है कि आपने सिंध को तकसीम करने की बात क्यों की है। तो बस ये ऐसे ही है। पाकिस्तान के जो स्टेक होल्डर हैं, कुछ तो लोग ऐसे हैं पाकिस्तान के अंदर के जो समझ रहे हैं कि वो रियासत से भी बड़े हो गए हैं और रियासत उनके मुकाबले में छोटी हो गई है। वो कहते हैं हम बड़े स्टेक होल्डर हैं, वो स्टेट को डिक्टेट करने लग गए। लेकिन पाकिस्तान में हुआ यह है पिछले 70 सालों में कि रियासत ने कॉम्प्रोमाइज इतने ज्यादा किए हैं कि रियासत अपनी मैक्सिमम स्पेस सरेंडर कर गई है टूवर्ड्स माफियाज और मुख्तलिफ ग्रुपों के लिए, और स्टेट उसमें श्रिंक होती गई है, अपनी स्पेस सरेंडर करती गई है। और वो जो लोग थे, माफियाज थे, ग्रुप्स थे, जहादी थे, वो मैक्सिमम स्पेस लेते गए। अब स्टेट ऑफ पाकिस्तान में रियलाइजेशन ये भी हुई है कि वो जो इंक्रोचमेंट हुई थी उसको खत्म करना जरूरी है ताकि पाकिस्तान गवर्न कर सके, पाकिस्तान जिंदा रह सके, ये रियासत पाकिस्तान चल सके। अगर ये इंक्रोचमेंट खत्म नहीं होती तो पाकिस्तान गवर्नेबल ही नहीं रह सकता। ये मैं नहीं कह रहा, ये टॉप लेवल पे कुछ फैसले हुए हैं और उसके तहत ही ये सियासतदानों को अपनी स्पेस में वापस भेजा जा रहा है।
मीडिया को अपनी स्पेस में भेजा जा रहा है। तो ये थोड़े साइज से बाहर जो निकल गए थे मुख्तलिफ सेगमेंट ऑफ सोसाइटीज, उनको वापस अपने सिस्टम में भेजा जा रहा है ताकि रियासत की जो स्पेस है वो वापस रियासत ले सके। तो ये एक साइलेंट ऑपरेशन बेसिकली चल रहा के अंदर, जो आपको और मुझे शायद नजर नहीं आएगा, लेकिन उस पर स्लोली काम हो रहा है। ठीक हो गया, बट सब स्लोली काम किया जा रहा है। जैसे अभी आपने राहत साहब की बात सुनी, उन्होंने बहुत सारी खबरें भी बताई हैं कि किन सेगमेंट्स पे काम किया जा रहा है। बड़े मियाँ साहब, और इस वक्त बड़े मियाँ साहब ज़ाहिर सी बात है वो अपनी पार्टी के कायद हैं, तो वो जो लीड देंगे पार्टी तो उसी हिसाब से चलेगी। अब जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उनको अगर कहा जाएगा 28वीं तरमीम में NFC अवार्ड को रिव्यू करना है तो वो मना तो नहीं करेंगे। तो क्या पार्टी के अंदर कोई खिंचाव देख रहे हैं, या आप देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जो स्टांस ले चुकी है, पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान में कोई तनाव आ रहा है, या पीपल्स पार्टी भी मान जाएगी, अभी ऊपर से वो जो इनकार कर रही है, क्या देख रहे हैं? नहीं, पहली बात है पीपल्स पार्टी ने माना नहीं, पीपल्स पार्टी मान गई है तो उनको आज़ाद कश्मीर की हुकूमत मिली है। वगैरह मुझे बताएं वहां पर क्या ऐसे गिव एंड टेक ये NFC अवार्ड के तहत हुआ है? यकीनन 27 के बाद ये जो अमेंडमेंट आई है उसके बाद 28 आनी थी, इसलिए उन्होंने उसे सरेंडर करवा के अपने वज़ीर आज़म को उनके खिलाफ अदम एतमाद ला के उनको तो वहाँ पर कंपनसेशन दे दी है। बाकी ये बयानिया जो है ये सियासी है, आवाम की आंखों में मिर्चें डालने के लिए। बाकी रही बात बड़े मियाँ साहब की, बड़े मियाँ साहब बड़े एहतराम के काबिल हैं जी। वो 3 मरतबा पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव रहे हैं, अपनी पार्टी के कायद भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, जो इस वक्त के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब, अगर आप उनकी स्टेटमेंट पढ़ लें, वो तो NFC के लिए बिलावल साहब को मोटिवेट करते नजर आते हैं अपनी तकरीरों में। वो तो कहते हैं कि मैं ये बिलावल के लिए छोड़ के जा रहा हूँ कि ये बड़ा भाई कैसे चलाएगा, उसके फंड नहीं होंगे। और सबसे भी अहम बात है, अगर ये NFC की जो तकसीम है जो 18वीं तरमीम के जरिए हुई थी, उसका मकसद आवाम को मजबूत करना था, एक आम इंसान को उसके समरात पहुँचाने थे, तो क्या पहुँचे? सिंध में पहुंचे, बलूचिस्तान में पहुंचे, या मुझे बताएं कि पंजाब में पहुंचे या KPK में पहुंचे। मतलब ये सिर्फ एक मिली भगत है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस पैसे की तकसीम के ऊपर भी अगर किसी का इक्तफा नहीं हो पा रहा तो वो पैसा जाता कहाँ पे है। किसी मजदूर, किसी किसान, किसी रूरल एरिया को हम देख लें, अगर हम गोठों को देखें जो को सिंध में है, पंजाब के जो कस्बे हैं, देहातों को देख लें, जो अल्लाह देता आज भी अपनी बच्चे के पाँव में ना जूती है ना कपड़ा है, और वो इस थरथराती हुई सर्दी में बगैर लिबास के घूम रहा है, तो या तो बताएं उसके सम्राट उन तक पहुंचते रहे और आइंदा भी पहुंचेंगे। अब इनकी अगर ये जाती लड़ाई है कि पैसा उधर आए तो इसके क्या मामला हैं, ये तो हमें बस समझ लें कि एक इबहाम पैदा करने वाली बात है। रही बात यह है कि जो चीज़ें टाई अप हो चुकी हैं वो हो चुकी हैं, वो 27वीं तरमीम की शक्ल में हो, 28वीं तरमीम की शक्ल में हो। और ये एक बात बड़े वसूख से मैं कहता हूँ, सियासी जमातों के पास पल्ले में कुछ नहीं है, वो अवामी हमायत है ही नहीं उनके पास जिसके ऊपर वो अपने मसल्स दिखा सकें कि वो समझे कि हम अवामी नुमाइंदे हैं। अवाम इनसे थक चुकी है। अवाम का इस निज़ाम से जो एतमाद है ना, वो इंतखाबी अमल से वो उठ चुका है। वो 78 साल से भेड़ बकरियों की तरह समझ रहे थे कि इस जमहूरी अमल के जरिए, डेमोक्रेसी के जरिए मेरे वोट की कोई वक़्त है। उनको पता चल गया कि वोट की यहाँ पर जो इज्जत है वो उसको पमाल होना है। यहाँ पर कोई भी वोट की अहमियत नहीं है। अवाम को किसी से लेना देना कुछ नहीं है, ना तो किसी लीडर से है। अवाम के अपने मसाइल हैं, वो अपने मसाइल को तो देख रहे हैं। वो एक मसीहे की तलाश में है कि कोई ऐसा मसीहा है जो इस निज़ाम को चैलेंज करे, इस निज़ाम को बुलडोज करे और यहाँ पर मुनसफाना कल्चर लेके आए, मुनसफाना तकसीम लेके आए, यहाँ पर जस्टिस, रूल ऑफ लॉ लेकर आए। अवाम जो है इनकी बातों के ऊपर इंटरेस्ट लेती नहीं है। ये आप कह सकते हैं कि जो मीडिया की ये खबरें हैं जो सोशल मीडिया पे चलती हैं, उसको एक खास ग्रुप देखता है, सुनता है। अवाम की इससे कोई दिलचस्पी नहीं। अवाम की तो दिलचस्पी है कि मेरे पेट में रोटी आनी चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। बेसिक फूड बकेट जो है उनको आसानी से मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। बहुत शुक्रिया आरिफ भट्ट साहब आपका प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए, जुल्फ़िकार राहत साहब आपका मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त। बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।